reached to an emotional moment, a proud moment, that as if I'm releasing a part of my heart today. And I remember that how you people, one day you came to the threshold of the school with your parents standing near the gate, and the time has come to release you to the sky, to the infinity of success, of opportunities, of competition, and many more. When I newly joined the school, I remember that these students, these class 12 students, were in class 8 and how actively participating in all the events, and I was very much impressed by them, Madhusmita, Arpita, Tapashwini, Ayusha, and all of them. And one more incident, a mischievous incident, I remember. Subhasis, where are you? Where are you, Subhasis? Yes, sit down, sit down. So wonder what happened. I was just, when he was in class 10, so that day when I asked, and he was cut near the gate because of improper uniform. So that day I asked him to stay there, to stand near the gate, and he said that Mangaraj sir is calling me. And he pointed towards class 10. But he didn't know that Mangaraj sir was on leave that day. And he was telling the academic IC who was making all the arrangement and said that Mangaraj sir is calling. So all these things, all your mischievous, these naughty things, I will remember forever my life. If you want to get success, never procrastinate things. Will you? No, ma'am. But you have done a lot, but don't do henceforth. Okay. So from the next one, so never fear to do anything. Always try to overcome your fear, whatever it may come. So we have learned from many of our chapters the same thing, to overcome fear and never to lose hope. When we are hopeless, when the days of despondent come into our life, what shall we do? Yes? Yes, we should look around. God has been provided a lot of things to us. So life is full of positivity. So never let negativity come into your life. Okay? And we should move forward with that positivity in our mind. All the very best, and thank you very much. ये वो नहीं जो आपको लैब में छोड़ दे, और वो भी नहीं जो आपसे नाता तोड़ दें। ये आपके वो टीचर हैं जो आपको ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक पढ़ा दें। लेट्स वेलकम द क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, द ब्यूटी विथ ब्रेन, मिस्टर स्मिता वाला पंडा ऑन स्टेज। There are a lot to say, but I am speechless. And according to Abdul Kalam ji, be silent in two situations. One, when the front or opponent of you, he or she, doesn't understand you. Second, when without any word, the opponent understands you. तो एनीवे बहुत बार ऐसे तो मैं सोचती हूँ जो 90% बातें जिंदगी में काम में आते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन जो 90% बातें पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो जिंदगी में काम में नहीं आती, लेकिन आने वाला जो 90% पढ़ाई नहीं जाती। तो ऑल द स्टूडेंट्स, I will request all of you be a good human being first. So let me explain you. You all are student, no? First, let me explain the abbreviation student. S. S first duty, S for study. Study, study, study. Always. Without study, student life is meaningless. And this is the most precious golden time to make your career successful. So S for study. Then T. T for truthfulness. Always speak truth, whatever may be the situation, adverse situation. Always say truth, speak truth. Because according to Prasanna Patsali, Asu Kabi, आम ओडिया रे कहती आसु कवि, तांको भाषा रे गोटिए मिछर बल
1000 गधर बल सहित समान आ गोटे सतर बल 1000 हाथीर बल सहित समान यूनिटी always don't be alone you cannot achieve anything in alone always unity एकता बजाय रखो the next D for discipline which is the key to success without discipline you cannot achieve anything so always work hard be in a disciplined manner and then kill your tension before it kills you reach your goal before it kicks you and live your life before it leaves you. So D, discipline. Next comes what E, eloquency. Eloquency, it means what? Always, whatever you want to speak, be clear, clarity, eloquent speaker. Whatever you want to say, be honest and speak eloquently. The next letter comes what? And nobility. And this is the key of everyone's life. We all are human beings. And without human values, always be honest, be kind, be helpful. Without nobility, you will not be blessed by God. ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ କାହାର ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବନି ମନକୁ ଆଣିବ ବି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ ନୋବେଲିଟି ଟି ଟେଣ୍ଡରନେସ୍ ବି ସଫ୍ଟ ସବୁବେଳେ କୋମଳ ହେବ ମଧୁର ବଚନ କହିବ जो थे कि पैसा लगे ना केबे कहा मनरे चेष्टा करनी क्या आघात दवापाई कहा ओठर हस टी न दे पारे भी कहा आखिर लुहर कारण केबे भी हेनी सब चेष्टा कर क्या ओठर हसटे फुटेवाई जदि भी कौन कारण वशत ऑब्स्टैकल फुटे न पारिल केबे कहा आखिर लुहटे दबनी देन ऑल दीज आर माय रिक्वेस्ट हार्ट वर्ड्स ऑफ माय हार्ट आ गोटे छोटिया कथा कहबी सब बड़े भगवान को बिलीव इन योरसेल्फ बिलीव इन गॉड जस्ट यू वर्क हार्ड कर्म कर चल फल भगवान को ऊपर छाड़ दियो ऑलवेज ही इज देयर गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू बट यू हैव टू बी possess all these qualities of student ago put your hard work that's why hard you work in silence then your success will come with what noise once again I am waiting to celebrate your noise in this campus on the date of publication of results at least everyone try to score as much you can just you put your best leave everything all results upon God so wish you all the best all my what you are already placed in my heart you cannot nobody can depart you you are permanently in my heart always till my last breath thank you all Life without struggle is meaningless. Success without sacrifice is worthless. Do you know that one thing? 90% of our problem, our own problem, is created by our own thought. This is a psychological study. We are thinking that this subject is very difficult, this one is difficult, so we are creating the problem. So in order to change your mind, so you have to set up a target. So you have to change the mind limit. So how you can change the mind limit? By two process you can change your mind limit.
So first one is meditation, second one is hard work. By two process, you can change your mind limit. You can curb your destiny by giving emphasis on these two factors. Meditation gives you peace, gives you concentration on a particular topic. Similarly, hard work that have no substitute. Labor has no substitute. So whatever labor you have sacrificed, so that multiple times of success you are achieved in the future. So now the days, all those 10th and the 12th students, they are very in a difficult situation. They are very difficult to manage their stress. So now there is no need to take stress. Rather, focus on only study, continuous study. So finally, all of the teachers have saying something else. I want to conclude this one. So always giving importance on three things. First one, fix a goal. A sharp goal is necessary. Second one is a systematic planning to achieve that goal. Third one is smart work. So these three important things is necessary for each one's life. So if you follow these three important things, so nothing can be impossible. You can achieve anything and everything. Thank you. All the best for your future. बंद हो जाएं सब दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं वो। सिर्फ अंग्रेजी और मोरल की ज्ञान ही नहीं, सीबीएसई का ज्ञान भी दिलाते हैं वो। तो टू मेक द मॉर्निंग मोर हॉलिक, लेट्स वेलकम द क्लास टीचर ऑफ क्लास 10, मिस्टर मंगराज मलिक। This ceremony is organized for class 10th and 12th. Do you know that blessing is very much necessary? If you have hard work and if you have blessings, you see that you are very close to the success. If you have hard work and if you have no blessings, that means you are indisciplined. It leads to that you are on halfway to success. And if you have no hard work and no success, you cannot do anything in your life. So prior to me, already my colleagues, they have explained well the incident which happened in the school as well as in the classroom. And so while I was coming to deliver my speech, I came to know that the chief guest of this occasion, due to lack of time, that time is very short, so I want to speak more, but as time is too short, I conclude my speech here. And before I conclude, I say one thing to you. तुम चुपचाप पढ़ाई करते रहो, तुम चुपचाप पढ़ाई करते रहो, शोर तुम्हारी लाल बत्ती वाली कार मचेगा दे। तुम चुपचाप पढ़ाई करते रहो, शोर तुम्हारी लाल बत्ती वाली कार मचा दे। That means it indicates that you don't make noise. Only the vehicle that you will travel one day in your future, it will create noise. So with this I conclude. Thank you. Have a nice. Hari Om.
जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादं जस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन् शुभं नित्य त्रिसन्ध्यङ्गे वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं भङ्क्त्वा रुद्रधनुः विदेहनगरे जो लब्धवान् जानकी निःशेषः परिभूय चेदितनयं जग्राह रुक्मात्मजां श्रीक्षेत्रे क्षेत्रे क्षेत्रे वा भवदुःखनाशन विधौ जः सर्वदा राजते जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ओम पावकान सरस्वती बाजेभीर्वाजिनीवती यज्ञो वसु धिया वसो अनुष्ठान पाई एमती एक महार्घ अवसर आम आज आशीर्वादर पात्र हो पारे जो माने जो माने आज आसन्न परीक्षार्थी आउ किछि दिन पर परीक्षा दब जो मानकर फॉर्म फिलअप सरी जाइछि प्राय मास हबो आसन्न परीक्षार्थी मानकु आशीर्वादात्मक महोत्सव करिवा ये आपण मान आपणकर प्रिंसिपल महोदयंकर एक व्यवस्था नव्य व्यवस्था जहाकु प्राचीन समय पालन करा जाउथुला सेतबेले थिला पूजा व्यवस्था जतबेले फॉर्म फिलअप हो जिवो परीक्षा पूर्व पिला माने गोटे पूजा करुले सार मान सहित मिसिकी कौन पाई ना ईश्वरंकर आशीर्वाद पाई गुरुंकर कृपा गुरुंकर सानिध्य अच्छा तुम मानकर मु देखुली गुरुंकर सानिध्य तुम पाखे ठीक अच्छी तो ईश्वरंकर आशीर्वाद पाई पूजा कराला गुरु को दे ईश्वर पाखे पहुँची ईश्वर को आशीर्वाद आने आम गोटे भल मनीष हवा पिला ईश्वर बोले कौन जानिछ आमे तांकु ईश्वर कहूँ जी किए संपूर्ण जगतकर आधार ताकू वेदांत दर्शन कहती जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति जद अभिसंविशन्ति तदैव विजिज्ञासस्व ब्रह्म ताकू आमे ब्रह्म कहूँ ताकू आमे ईश्वर तांकु कहूँ जी किए जगतर आधार आ जो ईश्वर सबुठी विराजित गुरुंकर कृपार आवश्यकता रही गुरुंकर कृपा केमती हम ना आमे जदि गुरुंकर आदेश को ठीक रूपे पालन करूँ गुरुंकर आदेश को ठीक रूपे पालन कले आमे आम काम भल रूपे संपादन करूँ गुरुंकर कृपा श्रुत हो पारू ईश्वरंकर इच्छा को पूरण करूँ ईश्वरंकर इच्छा को पूरण न कले आम मनुष्य जीवन निरर्थक हो मनुष्य जीवन सार्थकता रही जदि मनुष्य जीवन सार्थकता रही आम धर्मर बाहर को पलैवा से आमको भल कर्म करने पड़ो भल पाठ पढ़ा पड़ो भल काम करूँ आदर्श छात्र बाहर जो माने कि ए समाज रे तम माने अन्य को दिग्दर्शन देला भली छात्र एठू बाहर आवश्यक हो मन हुए अतएव ये आशीर्वादात्मक महोत्सव वेदर निर्देश अच्छी जे सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायन मां प्रमादितव्य स्वाध्याय पछू घुचब ना कहीं पाठ केबे शेष हुए ना पाठ बढ़े शास्त्रम सुचिंतितम प्रविचिंतनीयम पाठ जिते पढ़ो आउ थे पढ़ा पड़ो शास्त्रम सुचिंतितम प्रविचिंतनीयम थरे पढ़ला द्वितीय थर पढ़ला होगला बोल हम ना पुणी पढ़ा पड़ो अतएव आमको स्वाध्यायन मां प्रमादित स्वाध्याय पछकू हटब ना our class 10th and 12th students will definitely take note of this point. Your class teachers and subject teachers, they represent the teaching community and including the principal also.
कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे स्टूडेंट तो मिल जाते हैं स्कूल के हर एक मोड़ पर हर एक स्टूडेंट इस बेंच की तरह मल्टी टैलेंटेड नहीं होता। तो आइए बुलाते हैं क्लास 12 की तपस्विनी बेहरा को आपके सामने कुछ अपना एक्सपीरियंस रखने के लिए। I really appreciate the efforts taken by my fellow juniors who worked so hard to make this blessing meeting and farewell a great success. I would like to take a moment to thank my teachers जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ खड़े होकर कुछ बोल पाऊँ। पहले तो सोच रही थी कि क्या लगेगा यार, मेरे क्लास के इतने सारे टॉपर्स के होते हुए भी मैं यहाँ के कुछ बोलूँ। फिर सोचा जिसको जो लग रहा है लगने दिया जाए, हम तो बोलेंगे या फिर नहीं। था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं यहाँ डरते हुए आई थी, और आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है, और आज भी मेरी आंखों में कहीं ना कहीं एक डर है और आंसू भी है। शायद इसीलिए कि मैं अब मेरी स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। स्कूल लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्कूल, व्हाट्स दैट एग्जैक्टली? कैन यू गेस? ओके, लेट मी स्पीक। One word, 6 letters, thousands of mistakes, millions of memories, infinite love, care and happiness, but with zero regrets. याद आएंगे बहुत मुझे वो क्लास की सारी मस्तियाँ जो अक्सर हम किया करते थे। पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक बस अपने ही धुन में जिया करते थे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत सारी इमोशंस के साथ आई हूँ, दो आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन। And for last time, I'll be addressing you all in this fashion. इसके अलावा मेरे पास इस जगह की बहुत सारी यादें हैं जो मेरे मरने तक शायद मेरे साथ रहेंगे। This beautiful school will always be an important part and parcel of my life. मुझे अभी भी अपने दोस्तों के साथ बिताए वो सारे हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, जस्ट लाइक लाफिंग लाउडली ऑन सिली जोक्स, दूसरे के लंच बॉक्स खाना, बस से देर तक आना, बिना किसी काम में भी एक्टिविटी रूम में पड़े रहना, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बहाने म्यूजिक सर के साथ वो बॉलीवुड के गाने गाना, सारे दोस्तों का मजाक उड़ाना और भी बहुत कुछ। ऐसी सभी यादें मेरे लिए बहुत खास है, and this will be forever in my heart. After 10th class, I had never expected one day I'd have to get apart from my beloved ones. Some of my friends left the school and changed their path at all, and some left in other section. वो जो कहते हैं ना 11th स्टैंडर्ड का सबसे डिफिकल्ट सिलेबस होता है, क्या वो सच में होता है? मुझे तो पता था कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। पर जो दोस्त मिले ना, कसम से क्या बताऊँ, यादें काफ़ी है वो 12th क्लास की जो हम सब ने जिगरी दोस्तों के साथ पास की। कैसे भूल सकते हैं वो दिन जिन्हें हमने स्कूल लाइफ का आखिरी लम्हों को जिया था। वो मॉर्निंग प्रेयर हर सुबह कानों में गूंजेगी, और वैलेंटिना मैम की सॉरी हमारी दूसरी मम्मी की वो प्यार वाली डांट बहुत याद आएगी। लिसन, पता है हर क्लास में एक खड़ूस क्लास टीचर जरूर होता है जो क्लास टीचर की चमची होती है, लेकिन पता है हमारी वाली सबसे हटके है, सबसे प्यारी और सबसे न्यारी। Okay, let's talk here about friends in schools. If I'll continue, it might take the whole day, but it'll never end. That's not, so it's time for the diamonds of our school. That's none other than our teachers. First and foremost, I'd like to thank our principal sir, who has always portrayed the image of highly disciplined personality and so kind and humble. Sir, I must acknowledge that we have learned the most important lesson of life from you, that is to be disciplined and self-restrained. Though we are unable to apply this practically, that's a different issue. But sir, I am very sure that the lessons of life we have learned from you would help us to climb the ladders of success. So, okay, next thing is, माँ की ममता की जैसे कोई फूल नहीं, माँ तेरे बिना रहना कबूल नहीं. And she is none other than our beloved Valentina ma'am. Your affection, love and protection over us is made the world to us.
We also want you to know that in our mind and heart, you are our chosen mother. Thank you, ma'am, for always reminding us is an important information that our classroom is not a fish market. And now we will be leaving too soon. आपको अभी कोई परेशानी नहीं होगी regarding our absenteeism, and everything will be fine. Thank you so much, ma'am. You are like a chemical reaction, mixing knowledge, passion, and guidance to create brilliant minds. Ma'am, you have taught us life is a chemistry. Dilute your sorrows, evaporate your worries, filter your mistakes, and boil your egos, and you will definitely get the crystals of happiness. Thank you so much, Smita ma'am, to always be there for us whenever and wherever we needed you. Thank you, ma'am. And it's time for Newton of our school, none other than our elegant, charming, beloved Suchitra ma'am. आपके बिना हमारा दिन अधूरा होता है, जैसे चांद के बिना रात अधूरा होता है. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Ma'am, we will always remember your Santa and Banta, and हमेशा जिससे कि हमेशा हमें झेलने के लिए तहे दिल से शुक्रिया. And keep listening to your आतंकवादीस. Biology is not a subject. It's an opportunity to demonstrate the beauty and complexity of our natural world. Ma'am, have always taught us we dissect ideas, analyze evidence, and piece together the puzzle of life. Thank you, ma'am. Thank you so much. Let's go ahead. No matter how bad we are at math, so depressed and demotivated, discouraged, still he always stood for us in a hope in his heart that and there to be motivate us with किच्छी असुविधा नहीं, and we will do it. And by this time, you have already known that whom I am talking. Any guess? Yes, it's none other than our beloved, charming, and always cool Mr. Amir sir. हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफ़ी है बच्चों की जिंदगी की स्वर्ग बनाने के लिए. Sir, you are so motivational and vibrating. Gives a rhythm to achieve success, also strength in every situation. It's none other than our Sandeep Maheshwari of our school, Saroj sir. A man with a good physics, जो खुद हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं, always with सत्ता, and how to get the right facts with I know everything and his famous dialogue which we are great familiar. Meanwhile boys will be shouting, he would say, boys don't make noise, and it's very simple. I am talking about whom? Pizza. Yes, none other than our one-man army, Ambika sir. I would like also to thank all the teachers who are very kind-hearted and has been sympathetic towards each of us, who used to give their extra time, support and help us in our days of anxiety and worry. I am sure all of them is going to display the same kindness and humility in years to come, and each and every staff and all the students, juniors, seniors have been very friendly, caring and cooperative. The special relation and bonds we shared amongst each other are forever going to remain in our heart, and we will always miss the lovely days spent here. All these memories which I shared with you in 6 minutes, it just felt like flashback of 6 years of my life. While we know we will not be able to live this life again, we are never going to forget the days spent here. In the end, I would like to thank everyone once again, and I am promising that we will always display the ethics, skills and prophecy we have learned here in every future act of ours. Thank you. All the best everyone. Journey throughout the school life. पीली ड्रेस में जब तुम लाल बिंदी लगाकर आती हो तो कसम से पुलिस की गाड़ी नजर आती हो. अरे वो तो चोरों को लेकर जाती है, तुम दिल चुरा के जाती हो. ऐसे ही आपके दिल चुराने आ रहे हैं कुछ खट्टी मीठी शायरी के साथ. श्वेता सुमन साहू फ्रॉम क्लास 12. I am
to express not only mine but feelings of all of us through my poem. नए जीवन का शुभारंभ कहूँ या पुराने यादों का पिटारा, नए जीवन का शुभारंभ कहूँ या पुराने यादों का पिटारा, ये दिन कुछ खास ही तो है जो खुशी के साथ है गम भी दे रहा। खुश तो हम बड़े होंगे, खुश तो हम बड़े होंगे नई जिंदगी जीने को, पर ना जाने क्यों एक डर सा चुभ रहा है आज इस सीने को। ये डर है कि कोई ना होगा हमारे साथ हमें गले से लगाने को, दो चार हंसी की बातें कह के हमारे सारे गमों को भुलाने को। खुश इस बात की है कि जाते जाते इतनी यादों को बटोर रहे हैं, खुश इस बात की है कि जाते जाते इतनी यादों को बटोर रहे हैं, पर दुख इस बात की है कि इन यादों में छुपे हुए इंसानों से हम दूर जा रहे हैं। ये दिन बड़ा अजीब है, अजीब ख्यालों से भरी, बड़े ही अजीब मोड़ पर ले आई है हमें ये घड़ी। हम जिस जगह को आने से डरते थे आज उसी जगह से दूर जाने को डर रहे हैं। घड़ी की टिक टिक आवाज के साथ हमारे सांसें थम रहे हैं। ये आंसू आज अखियों से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शायद भनक इनमें भी लग गई है कि आज के ये बड़े बड़े वादे फुल प्रूफ नहीं हैं। वादे फिर से मिलने का, वादे फिर से साथ जीने की, वादे फिर से कुछ पलों को यादगार बनाने की। पर इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हम मिले या ना मिले, ये वादे हमेशा साथ रहेंगी। स्कूल के ये छोटे छोटे फेल्योर्स हमें एक दिन बड़ा अचीवमेंट दिलाएंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच श्वेता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए सुनते हैं मिलने मिलाने की कहानी क्लास 12th की श्रुति की जुबानी। अब ना वो यारों की महफिल होगी, ना वो कारवा होगा, बस अकेले हम और हमारा खुला आसमान होगा। इस संस्था की बात करूँ तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे टीचर मिले जिन्होंने हमें मानव से मनुष्य बनाया। यहाँ हमारे चरित्र का निर्माण हुआ। वैसे तो हमारे सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें हर विषय को सकारात्मक रूप से देखने का नज़रिया सिखाया। इन्होंने मेरी तरह मेरी दोस्तों की हर मुश्किल में मदद की है, इसीलिए हम आप सबकी के आभारी हैं। इस संस्था से जो सबसे कीमती चीज़ मिली वो मेरे सभी दोस्त हैं, जिनको हमारे स्कूल में डिस्टर्बिंग एलिमेंट ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। शायद दोस्तों के लिए ही ज़िंदगी खूबसूरत हो जाता है, इसीलिए ये दोस्त खास बन जाता है। उनके लिए एक शायरी है। दोस्तों से मिलने के बाद दिल में दोस्ती का करंट ऐसे बहने लगा, दोस्तों से मिलने के बाद दोस्ती का करंट दिल में ऐसे बहने लगा, उसके बाद मैं दोस्तों की मैग्नेटिक फील्ड में ही रहने लगा। सुनो एक अतरंगी कहानी जो थी सबसे अनोखी और निराली। वो है ओईबी हिंजलीकट 23-24 बैच की डिस्टर्बिंग एलिमेंट की कहानी। लिखी उन्होंने एक नई पन्नी। जब कंबाइन के लिए शिफ्ट होते थे तब शुरू होता था माँ और मासी की कहानी। जब सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी को आते थे तो बोलते थे कि मौसी के घर जा रहे हैं, और जब सेक्शन बी से वापस लौट रहे थे तो बोलते थे कि माँ के घर वापस लौट रहे हैं। सेक्शन ए के लिए वैलेंटिना मैम माँ थे और स्मिता मैम मौसी थे, और सेक्शन बी के लिए स्मिता मैम माँ और वैलेंटिना मैम मौसी थे। सच में ये बात फिजूल नहीं है, वो दोनों हमें हमारी बुरे वक्त में सपोर्ट करते थे और प्रिंसिपल सर से डांट खाने से बचाते थे। हाँ, कभी कभी वो भी हमें डांट देते थे, पर प्यार भी वैसे ही करते थे। पता नहीं ये दिन कब गुजर गया, हंसते हंसते उनके साथ ये 2 साल बीत गया।
लाइफ कितनी आसान होती अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना होते, बायो में डायग्राम ना होते और केमिस्ट्री में रिएक्शन ना होते। चलो अब बारी आई हमारे टीचर्स के बारे में कुछ सुनने का, जिनकी पूरी 12th क्लास हमें लेमनेड और नींबू पानी में डिफरेंस समझाते हुए चली गई और उनके एग्जाम्पल ने दिमाग में क्या खिचड़ी पका गई। आपके बताए हुए स्ट्रक्चर और फॉर्मूले हमें रात में भी याद आएंगे और आपका दिल तो पागल है गाना कभी भुला नहीं पाएंगे। कैन यू गेस? आप सॉल्व करवाते हैं केमिकल की मिस्ट्री, आपकी अपने स्टूडेंट के साथ है ज़बरदस्त केमिस्ट्री, नहीं पसंद आपको क्लास में बैठे फ्री, आप हैं ऐसे जैसे हो विजडम की ट्री। जिसके एंट्री से दिल में करंट फ्लो होता है, सुधांशु आई विल किल यू से स्टार्ट होकर मोक्षु अगर दूसरी बार सोए तो मुंह पे पानी फेंक दूंगी से एंड होता है हमारा क्लास। कैन यू गेस कौन है वो? न्यूटन ने गिरते एप्पल से लॉ बनाया, आपने वो हमें सरल करके समझाया। चले तो मोशन, गिरे तो इनर्शिया, हर कंसेप्ट को पूरी शिद्दत से पढ़ाया। जैसे स्पीड और डिस्टेंस में है पॉजिटिव रिलेशन, वैसे ही हमारे आपके साथ है इक्वेशन। जिसके आने से कुछ ना होते हुए भी तालियां बजती है, उनके वोट ऑफ थैंक्स के बिना हर इवेंट सुना सुना लगता है। कैन यू गेस? क्या तारीफ करूं मैं सर आपकी, अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। आपकी उपलब्धि को बताने लगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी, ना हर समुद्र में मोती सदा खेलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खेलने से समस्त उपवन खिल उठते हैं, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों के बाद ही खिलते हैं। अब मैं उनके बारे में बोलने जा रही हूँ जिनकी स्माइल बहुत प्यारी है और उनकी समझाने के बाद हर चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कैन यू गेस? बहुत स्वीट है आपकी वॉइस, पसंद नहीं आपको क्लास में नॉइज। चाहते हैं हमारा फ्यूचर हो ब्राइट, डिमांड है आपकी हमारा आंसर हो राइट। ये है हमारे बायोलॉजी के टीचर जिनमें है कई फीचर। ताकत उनकी इतनी सुपर, चाहे तो वो उठा दे स्कूटर। पढ़ाना उनका है एक गुण, ना है उनमें कोई अवगुण। बायोलॉजी में है वो हमारे लीडर, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जैसे है कंप्यूटर। हम ना करें कभी उनकी निंदा, दिखने में है वो ऐश्वर्या। अब बारी है उन टीचर की जिसकी बात जैसी नज़र है और जो हर बात पे तुमसे ना हो पाएगा बोलते हैं। कैन यू गेस? जीएस पीरियड में आके हमें मैजिक नंबर सिखाया, जीएस के एग्जाम में हमें करंट अफेयर्स में फंसाया। कैन यू गेस? पीटी पीरियड की बात ही निराली थी। सर के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत प्यारी थी। उनका खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। आई नो एवरीथिंग बोलना उनका मैनुअल था। हमें तो एग्जाम्स ने लूटे, सिलेबस में कहाँ दम था। एग्जाम में वही इन्विजिलेटर आए थे जो कि पूरे स्कूल में दबंग थे। कैन यू गेस? अब मैं उनके बारे में बोलने जा रही हूँ जो हमारे स्कूल के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके मोटिवेशन सुनने के बाद हर स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो अलग बात है। कैन यू गेस? सर का एक फेवरेट डायलॉग है जो कि वो हमें हमेशा बोलते हैं कि तू कभी मोड़ी से हबुनी। धन्यवाद। For all the teachers, thank you so much. सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है।
तो आइए लगाते हैं क्या मिला है और क्या नहीं मिला है क्या हिसाब क्लास 12 की तन्मयी के साथ। I, Divya Brothers, standing in front of you to say my views of life in the form of a poem. So, I'm going to start. हाँ, आज भी याद है वो दिन, वो पहली बार इस स्कूल में कदम रखना, उस मासूमियत की आड़ में पूरे स्कूल को निहारना, वो ओए भी अंतिम, वो नए नए टीचर्स जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए करते थे हम नया नया बहाना, वो डस्टर और लाइब्रेरी के बुक्स के लिए झगड़ना और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर पीटी सर को मारना, एक विसिल बजी कि पूरे स्कूल में भागदौड़ मच जाना और चुपके से जाकर अपने अपने बेंच पर बैठ जाना, वो 2 प्लेट्स ना लगाने पर गाली सुनना और दोस्तों को दिखाने के लिए और भी ज़्यादा जोर से फूट फूट कर रोना, वो संस्कृत और हिंदी मैम के पीरियड में हमेशा गाली सुनना और जल्दी खाकर आकर 10 मिनट में संस्कृत का पूरा व्याकरण पढ़ना। तब के नए प्रिंसिपल का खौफ भी बड़ा अनोखा था, क्लास से बाहर जाना जैसे जंग के मैदान में कदम रखने जितना मुश्किल था। एक एक क्लास में 4-4 कैप्टन होते थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, क्लीनिंग कैप्टन, लैंग्वेज कैप्टन और उस रजिस्टर को संभालने के लिए एक और ही सही, लेकिन फिर भी हमारा क्लास कभी नॉइज फ्री नहीं हो पाया था। तब पढ़ाई के हिसाब से नहीं, टीचर्स के हिसाब से फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट होते थे। अरे 15 अगस्त या 26 जनवरी आने वाला है, अब तो बच्चों को क्लास में पाना ही मुश्किल था, क्योंकि तब का फ्लेक्स तो एक से ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को माना जाता था। तब तो ब्लैक बोर्ड में मैथ करने का एक अलग ही एक्साइटमेंट था। हमारे क्लास टीचर का फेवरेट जो बनना था। हमारे क्लास में तो सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट और पढ़ाई के मास्टर्स थे, न जाने फिर भी क्यों तो वर्स्ट क्लास के नाम से जाना जाता था। तब तो हमें उसी हाउस में जाना था जिसमें हमारे सारे दोस्त होते थे और उसे सबसे बेस्ट साबित करने के लिए बाकी दोस्तों से भी तो लड़ना था। वो इंग्लिश टीचर का हमारा इंग्लिश ना बोल पाने पर हमेशा डांटना और हमारा आज तक भी इंग्लिश को चबाना। तब तो एसएसटी और साइंस का भी बड़ा डिमांड था। जरा समझिए, सब्जेक्ट्स की नहीं टीचर्स की बात हो रही है। यूँ कहें तो 6 से लेकर 8 जन्नत का अफसाना था। फिर तो कोरोना ने हमारी कुछ लम्हों की मेमोरीज को सीमित रख दिया, लेकिन हमने भी तो जैसे कम टाइम में ज़्यादा मेमोरीज बनाने को ठाना था। 9th-10th की यादें भी बड़े अफसाने थे, कुछ नए दोस्त बनाए तो कुछ को खोया भी तो था। 9th की ऑनलाइन क्लासेस ने क्या खूब ज्ञान दिया था। सच कहूँ तो पूरे साल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और टीचर्स को भी क्या ही पता था। तब तो क्लास ज्वाइन करके हमने खाने पीने नहाने सब का काम किया था। पर 10th क्लास की बात तो कुछ अलग था। नए कंपटीटर्स थे भाई, अब तो रैंक 10 में भी आना मुश्किल सा हो गया था। हमारे क्लास टीचर का स्ट्रिक्टनेस भी लाजवाब था। आज अच्छा तो कल ताना मारना जैसे उनका लाजवाब था। वो रगड़ रगड़ के इंग्लिश एसएसटी और उड़िया का लॉन्ग आंसर्स लिखना और हमारे क्लास टीचर्स का बार बार क्लास टेस्ट लेने का जैसे कोई कंपटीशन ही चल रहा था। और 10th के बाद इस हाउस में ये स्कूल से जाना कि भाई 12th तो यही करना है, और फिर रिजल्ट आने के बाद रिलेटिव की वजह से कभी खुशी कभी गम की तरह घर में ही सीरीज चलना। बट 11th की स्टार्टिंग में भी क्या गहरा गम छोड़ा था। कुछ दोस्तों को डिफरेंट कॉलेज के लिए खोया, तो कुछ को पास होकर भी एक दूसरे क्लास में बैठा हुआ पाया था। हाँ, नॉट टू फॉरगेट कुछ नए मेहमान भी आए थे, लेकिन फिर भी यार एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगा ही था। अब तुम बड़े हो गए हो, दुगना मेहनत करोगे तो ही आगे जाओगे के दौर में हमें तो ये लास्ट ईयर ही मस्ती करने का भूत सवार था। वो अंताक्षरी, दम सराज और चुपके से टिफिन खाना का मज़ा ही कुछ अलग था। बिगड़ रहे ही जानकर भी न जाने क्यों वो सब कुछ करने को दिल कर रहा था। अपनी बचकानी हरकतों से टीचर को थोड़ा बहुत तो सताया था, फिर अपने चुलबुले बुलबुले अंदाजों से उन्हें हंसाया भी तो था। तब तो हमें बस स्कूल का सीनियर बनना था, लेकिन 12th में स्कूल का सीनियर बनने का सफ़र इतना थोड़ी ना आसान था। जिस हाउस के लिए हम आज तक झगड़ रहे थे, अब उस हाउस का कैप्टन बनकर संभालना था। मगर सफ़र के इस मोड़ में लाजवाब जूनियर का भी तो साथ मिला था।
अपने पढ़ने वाले सब्जेक्ट से 3 बस साइंस की कैटेगरी में आते थे, लेकिन न जाने क्यों हमें बस मैथ की ही 3 कैटेगरीज पढ़ने जैसा लगता था। 11 की लापरवाही ने क्या खूब सबक सिखाया है। अब कितना भी कोशिश करें उस टेंशन फ्री एरिया से कभी बाहर ही नहीं आ पाए हैं। फिर भी सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए हम बस एक सफ़र पर चले हैं। न जाने रास्ते किस मोड़ पर ले जाए, हम तो थोड़ा कोशिश कर चले हैं। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, फाउंडेशन डे, तो कभी एनुअल स्पोर्ट्स डे ने क्या खूब मेमोरीज बनाई है। अब किसी और चीज़ की ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं, बस फेयरवेल के इस दिन के डर को अपने मन में पाया है। इस 12th के सफ़र में खुद को बहुत लकी पाया, बेस्ट क्लास टीचर और इतने प्यारे प्यारे दोस्तों को जो पाया। हम नहीं भूल पाएंगे उन प्यारे प्यारे सीनियर्स को जिन्होंने ऐसा साथ दिया है अपना। बस हो भी कर सकते हैं, बरकरार रहे ये साथ अपना। अपने टीचर से भी बस यही कह पाएंगे, आपके ये बेशरम और नालायक लाइफ में बहुत आगे बढ़कर दिखाएंगे। शायद यहीं तक का सफ़र अपना। अब तो है हमें अपनी मंजिल की तलाश में जाना, लेकिन फिर भी याद आएंगे वो पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगाना। अब तो बस यादें ही रहेंगे, पर हम अपने पीटी सर से थैंक यू कहना कभी भूलने नहीं वाले हैं। आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए हम हमारी ये मेमोरीज कभी भूल नहीं पाएंगे। अब तो बस यही ही रुकना, क्योंकि आगे तो बस यही कह पाएंगे, यार वो दिन थे क्या दिन थे। तो मैं अब इस एंडिंग करने के लिए, मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करने के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। थैंक यू। कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो सुनते हैं कुछ हार जीत की कहानी क्लास 12 कॉमर्स की कुमकुम की जुबानी। I, Kumkum Pangai, standing in front of you, express my feelings about our school. Jai Jagannath, let me start by saying that I am very proud to addressing you today as the students of Odisha Das Vidyalaya, Hinjaligarh for the last time. I am here to express my feeling on behalf of all senior students of Commerce Department on the special occasion of blessing ceremony 2023 and 24 arranged by the juniors. At this stage, we all senior students are free to go on all way, and it will be absolutely different from other. It is said that there is no success without loss. This is a strange world. In order to achieve something, we have to lose many things. We are losing such a lovely, soothing and loving company of our dear teachers. बहाना छोड़ दिया हमने, बहुत सहलिए सरदर्द पढ़ने के चक्कर में, इसीलिए शायरी को अपना बना लिया हमने। ऐसे ही कुछ खट्टी मीठी शायरी के साथ आ रही हैं स्वाति स्वरूपा आपके पास। आखिर आ ही गया वो दिन जिसका शायद ही हमें कभी इंतज़ार था। वो स्कूल का आखिरी दिन, स्कूल को छोड़ के जाने का वक्त, और इन लोगों को भी जिनमें से कुछ मेरे अनुशासक हैं और कुछ मेरे दोस्त। एक गहरा सा रिश्ता बन गया था, ना सिर्फ इन लोगों से बल्कि स्कूल के हर एक दीवार से, हर एक कोने से। बस इन्हीं रिश्तों को एक कविता के रूप में समेटने की कोशिश की है मैंने, ताकि जब भी कभी ज़िंदगी को बिखरते हुए पाऊँ तो शायद इस कविता को पढ़कर इस लम्हों को फिर से एक बार जी सकूँ।
तो कुछ ऐसा लिखा है कि आज बड़ी याद आ रही है उस पहले दिन की जब स्कूल न आने के लिए रो रहे थे हम, और इतने सालों बाद आज फिर आंखें भर आई है क्योंकि स्कूल में रहने के लिए अब घड़ी बचे हैं कम। सालों पहले शुरू हुआ था जो सफ़र, आज वो सफ़र अंत होने को है। ये स्कूल तो नहीं बल्कि हमारा दूसरा घर हमारे हाथों से आज खोने को है। अब ना ये घर रहेगा ना ये घर वाले रहेंगे, हमें खुद ही खुद का सफ़र बनाना होगा। ना अनुशासन मिलेगा ना अनुशासक मिलेंगे, अब इस लंबे से सफ़र में हमें अकेले ही चलना होगा। शायद इस घर को छोड़ के हम बहुत दूर चले जाएंगे, इन गलियों में लौट के वापस कभी ना आएंगे। पर जो भी हो, चाहे जितने भी दूर चले जाएं हम, इस घर को और इन घर वालों को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। और रही इस घर के सबसे प्यारे सदस्यों की बात, मेरे दोस्त, जिनके बिना शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जिन्हें छोड़ के जाना शायद आज तक का सबसे मुश्किल काम होगा मेरे लिए। पर कोई नहीं यारों, चाहे हम बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन ये वादा करते हैं तुम सबसे, ये जिंदगी भर हम दोस्ती निभाएंगे। तुम लोगों को हमेशा मैं अपने दिल के सबसे करीब रखूंगी। तो ये पंक्तियाँ तुम लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता ये गलत होगा अगर तुम लोगों को मैं आसमान का तारा कह दूँ। मुझे नहीं लगता ये गलत होगा अगर तुम लोगों को मैं आसमान का तारा कह दूँ, क्योंकि तुम लोग वो अंधेरे रातों के चमकीले सितारों से ही तो हो जिनके साथ होने से मैं सारे गमों को हंस हंस के सह दूँ। तुम लोगों ने मुझे समझाया है कि साथ तुम हमेशा रहोगे, पर जिंदगी से मुझे अकेले ही लड़ना होगा। तुम लोग मेरे रथ में बैठ के मुझे निशाना तो दिखा दोगे, पर तीर मुझे खुद ही चलाना होगा। तो तुम लोगों को इस अर्जुन का कृष्ण कह दूँ अगर मैं, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी गलत होगा। हाँ, हाथ छूट रहे हैं अब, पर मेरा पूरा विश्वास है कि ये साथ कभी नहीं छूटेगा। माना कि फ़ोन पे हर रोज़ बात ना हो पाएगी, तुम लोगों से हर घड़ी मुलाकात ना हो पाएगी, पर जब भी कोई खुशी आए या गम, मेरा ये दिल सबसे पहले अपने पुराने दोस्तों को ही ढूंढेगा। तब शायद तुम्हें खुशी से गले लगा ना पाऊँ, तुम्हारे कंधों पे सर रख के अपना दिल हल्का न कर पाऊँ। पर जब तुम कहोगी स्वाति हम अब भी साथ हैं तुम्हारे, तो शायद थोड़ी दूर और चलने की हिम्मत। बोलते हैं हवाओं को थोड़ा चलने और सूरज को थोड़ा थमने, और बुलाते हैं रोजालिन सेठी को आपके सामने। First and foremost, I would like to thank our principal sir, who has always portrayed the image of a highly disciplined and personality, yet so kind and humble. Sir, I must acknowledge that we have learned the most important lesson of life from you, that is to be disciplined and self-detained. Sir, I am very sure that the lesson of life we have learned from you would help us climb to the ladders of success while being humble and modest at the same time. I would especially like to thank our economic sir, Mr. Saraj Kumar sir, for his constant support me when I had joined the school in 2022. I was undergoing some family problems, due to which I was not able to concentrate on my studies. But sir, his unvarying support and never-ending trust in me transformed me completely in a practical individual. Thank you, sir. Before ending this speech, I would like to thank once again to our teachers, Mr. Bhagirath sir, for helping us and being our mentors. We have troubled them many times, but now we are not their students anymore. We will miss them. We will miss our bestmates as well with others' first friends, and have shared the most carefree days of our life together. I would want to thank the helpful staff of the school
as they never failed in finding the uncountable pens and pencils that we lost in our class every day. They were humble and helpful. Thank you for giving us this farewell and making our last a memory. खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारे महफिल में आए हैं। तो ऐसे ही एक खूबसूरत से दिल क्लास 10 की और आरती को बुलाती हूँ आपके सामने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आता है याद वो स्कूल का ज़माना, वो एक दूसरे को बचाना, कोई एक परेशान हो तो सब मिलके उसको समझाना, वो साथ बैठ के हंसना और मुस्कुराना, वो विज्ञान और गणित की क्लास में सो जाना। ना भूलेंगे वो दिन और वो बातें, अगर कुछ है तो यादें ही यादें। Good morning everyone, respected principal sir, teachers and my dear friends. It's Aarti from class 10, standing in front of you to share my memories in this school. My school is the best place where I always went to visit. My school, like my second home, it provides me with education apart from my physical and social development. The clean and positive atmosphere of our school inspires us to study. We are extremely proud to be a part of such a majestic school. In this time, all teachers help us to shine. So I express some teachers' nature, like first of all, our class 10th class teacher, dear Mickey ma'am. हमसे तो ज़्यादा मिकी मैम ने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए परेशान थे। इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिए कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम सुनते सुनते तो पूरा 10th क्लास ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। क्लास में कितना भी शोर क्यों ना हो, जब मैम क्लास के पास से गुजरते थे, मैम की पायल की आवाज़ सुनकर सब शांत हो जाते थे। जब हम मैम का कहना ना मानते थे और मैम हमें मारने के लिए हाथ उठाते थे, तब हम सोचते थे कि बहुत जोर से लगने वाली है, पर इतना धीरे से मारते थे कि पता ही नहीं चलता। उससे ज़्यादा तो शाबाशी देने के वक्त दर्द होता होगा। बट थैंक यू मैम फॉर योर सपोर्ट एंड हेल्प। नेक्स्ट अवर गौतम सर। जब 9th क्लास में गौतम सर हमारे क्लास टीचर थे, उस वक्त सर के नाक पर हम दम करके रखते थे। ना जाने कितनी बार हमारे वजह से सर प्रिंसिपल सर से डांट सुने हैं। ना जाने गलती किसकी भी हो, पर पहला डांट बेचारा सुबह ही सुनता था। सबके नकल करके हमें हंसना कभी भूलेंगे नहीं। एक टीचर होने के बाद भी स्कूल के आधे से ज़्यादा काम खुद करना और हर वक्त न्यूज़ सुनते रहना हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सर। मैं तो सुनी हूँ कि मैथ टीचर हमेशा गुस्से वाले होते हैं, पर हमारे स्कूल के मैथ टीचर ऐसे नहीं हैं। अमीर सर को मिस्टर कूल बोल के चिढ़ाना, सुधाकर सर के ओके देन को गिनना और उनके क्लास में शरारत करना जैसे आदत सी हो गई थी। एक बार तो सुधाकर सर के ओके 5 मिनट्स तक गिन रहे थे। यकीन नहीं होगा, सर 87 बार ओके बोलते थे। प्रयोजनी मैम का हैंड्स प्रूफ हमेशा याद रहेगा। 9th क्लास के दिन तो मैथ मैम को ही देख के निकल गए। स्वीटी और लीजा पंडा के बीच हर बार कंफ्यूज होना, पर मैम अब तो पहचान लेते हैं। फिजिक्स मैम जब क्लास में आते थे तो लगता था जैसे कोई एंटरटेनमेंट क्लास शुरू हो रही हो। मैम के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते वो एक आतंकवादी है। ज़रूरत की चीज़ याद हो या ना हो, लेकिन मैम की वो प्यारी प्यारी एग्जाम्पल्स हमेशा याद रहेगी। बायोलॉजी मैम को पता नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि मैम साइलेंस किलर है।
मैम ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन पढ़ाने के वक्त स्ट्रेट कहना उनका परमानेंट है। नेक्स्ट अवर केमिस्ट्री मैम। केमिस्ट्री मैम के बारे में और क्या ही बोलना, वो तो एक छोटी सी छोटी बात को भी हमारे रियल लाइफ से जोड़ देती हैं। वो बातों को ऐसा घुमा फिरा कर बोलते हैं, लगता है जैसे कि ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। एंड में पता चलता है कि रोज की बात है। इसी तरह एक बार मैम हमें लेमोनेड के बारे में बता रहे थे। आप सभी तो लेमोनेड के बारे में जानते ही होंगे। एक दो बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं था। ज़्यादा बच्चों को बाद में पता चला कि ये तो रोज़ के पीने वाला नींबू पानी है। नेक्स्ट अवर ओडिया मैम। ओडिया मैम टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स लगते हैं। बातों में मैम को कोई हरा नहीं सकता। वो तो हमारे लिए गूगल है। ना ही सिर्फ ओडिया और भी बाकी चीज़ों में उन्हें बहुत ज्ञान है। नेक्स्ट अवर वैलेंटिना मैम। मैम तो हमें ज़्यादा दिन के लिए क्लास नहीं लिए थे, पर मैम की आवाज़ मुझे गूगल की वॉइस की जैसा लगता है। नेक्स्ट अवर हिंदी मैम। सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन हिंदी मैम की वो प्यारी सी स्माइल कभी नहीं भूलेंगे। कंप्यूटर मैम। जब हम नए नए इस स्कूल में आए थे तो जानकी मैम ने ही हमारा सारा शरारतियाँ को झेला था। वो हमारे पहले क्लास टीचर थे। अभी तक मैम हमारे दिल में है और आगे भी रहेंगे। नेक्स्ट अवर मंगराज सर। मंगराज सर तो हमारे दोस्त जैसे हैं। क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि और कहीं पर मन नहीं लगता। पढ़ते वक्त उस कैरेक्टर में घुस जाना उनका पढ़ाने का एक स्टाइल जैसा है। हमें बहुत अच्छा लगता है। सेंटेंस को आखिर में जैसे फुल स्टॉप होता है, वैसे ही सर का हर सेंटेंस के आखिरी में क्लियर होना। नेक्स्ट अवर विक्रांत सर। सर के पढ़ाए हुए स्टोरीज अब तक याद है। रोल नंबर पुकार के सवाल पूछना और जवाब न देने पर उसे 5 बार या 10 बार लिखना हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट अवर सरोज सर। सर ने हमेशा टाइम मैनेजमेंट सिखाया, कभी किसका लाइफ स्टोरी सुना के हमेशा मोटिवेशन किए, पर एक बात परमानेंट रह गया। एनीवन गेस कि वो बात परमानेंट क्या है? वो बात परमानेंट रह गया, वो है तू केबे मनीष हबुनु। नेक्स्ट अवर भागीरथी सर। सर का तो ज़्यादातर हमारे क्लास नहीं आते, पर जब भी आप क्लास में आते थे तो मीन, मीडियन और मोड सिखाते थे। खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना सिखाते थे। उनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता था। नेक्स्ट अवर संस्कृत सर। सर से तो हमने कभी पढ़ने का मौका ही नहीं पाया, लेकिन जब भी क्लास में आते थे संस्कृत, वेदों और पुराणों के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट अवर म्यूजिक सर। सर ने हमें संगीत के मतलब सिखाया है। बिना देखे ही हाथ पकड़ के हमारा नाम बोल देते थे। आपकी गाना हुई सुनना मेरा कानों को सुकून देता है। नेक्स्ट अवर पीटी सर। सर ने हमेशा हमें सही दिशा दिखाया है। जब भी कोई गलती करने पर सलाह देने और फिर से माफ़ कर देने उनकी आदत है। हमेशा हमें नए नए गेम सिखाते आए हैं, पर वो थोड़ा मिस्टीरियस थे। जब भी उन्हें गुस्सा आता था वो मुस्कुराते थे। फिटनेस के मास्टर हैं हमारे पीटी सर। योगा तो ऐसे करते थे
कि लगता है कि उनकी बॉडी में कोई हड्डियां ही नहीं है। नेक्स्ट अवर प्रिंसिपल सर। सर ने हमेशा हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाए थे। स्कूल को हमारा नहीं सोच के स्कूल हमारा नहीं मेरा सोचने के लिए बोलते थे। बी अ गुड लिसनर। पूरा सुनते सुनते स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया। एट लास्ट आई विल से समथिंग अबाउट माई फ्रेंड्स। First, I thanks to Nandini, Annu, Sriya and Neha for helping to write my all this speech. I will thanks all my friends to make memories in the school and support to us. Thank you for supporting me. I will never forget you guys. Thank you. Every point of your class school life. Thank you. Next, I would like to request our principal sir to distribute the pen and admit card to our students with the tons of good luck for the upcoming board examination.